Namaskar and a very good evening. Welcome to Swayambhu Mindset Series, Swayambhu Senior. Our guests for today are Dr. Ashok Bendre and Srimati Archana Bendre. Mrs. Archana Bendre was born in Gwalior, and as a student, she was always a learner. She loves reading and is fond of reading spiritual books and books on customs and traditions. She is also a trained Bharatnatyam dancer. She loves to give back to the society and consistently helps students in their studies and also mentors and counsels them. In the year 1976, she joined Sophia Girls School as a biology teacher and she retired in the year 2007. Besides teaching, she led senior students of the school to Nepal and South India for educational purposes. She is also the examiner of CISE board for class 10 and 12th examinations. Dr. Ashok Madhukar Bendre. Dr. Ashok hails from Meerut in Uttar Pradesh. He completed his high school from Nagpur and was the rank holder in NCC. He completed his graduation and post-graduation in botany from MVM Bhopal. He writes books and his books are still available in the market since 1968. And this was done when he started working as a faculty member. He was also invited to teach online classes in Orissa for aspirants to become medical professionals, and this was long before online classes began. He is also invited by various schools for lectures on plant use and pollution. He's definitely a Swayambhu senior at 78. He joined the Rotary Club in the year 2001 and became the president of the club in 2014. Presently, he is undergoing training to become a faculty member for a Rotary District Leadership Institutes. Book writing keeps him busy, and it kept him busy during the lockdown too. He was very keen to pursue research work and completed his PhD in the year 1972 under the guidance of Professor V. Puri. He continued to enjoy his profession, which lasted around 39 years. He has worked on pollution and led two students to the award of PhD on the same subject. Let's welcome our guest for today, and I invite Shri Anil Garg, our Swayambhu mentor, to please commence with our Swayambhu senior session. Over to you, Anil ji. नमस्कार मित्रों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं जब आ रहा था, कुछ लोगों ने मेरे साथ आज कुछ कहानियां शेयर की हैं। मैं सोचता हूं आज शुरू करते हैं एक कहानी से। नॉर्मली मैं एक कविता से शुरू करता हूं, आज एक कहानी से शुरू करते हैं। तो चलिए एक छोटी सी कहानी जरा देखते हैं। तो दोस्तों, किसी शहर में एक ओल्ड लेडी थी जो टीचर थी और उनको रिटायर हुए काफ़ी समय हो गया था और काफ़ी समय उस समय में उनके कोई मिलने वाला नहीं, कुछ नहीं। तो उनको लगता था कोई एप्रिसिएशन नहीं है, पता नहीं ज़िंदगी का क्या हुआ, शायद मैंने ज़िंदगी व्यर्थ की। एक दिन उनको लगा कि अब मैं शहर छोड़ दूँगी, तो वो अपनी टेबल पे बैठी और उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी ये सब गाथा लिखी और एक छोटे से झोले में अपने कपड़े उठाकर वो निकल पड़ी कि अब मैं ये शहर छोड़ दूँगी। अचानक से जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलती हैं, तो देखती हैं कि एक लड़का एक व्हीलचेयर पर उनके सामने आता है। उस लड़के ने उनको नमस्कार किया और कहा, देखिए मैं आपके पैर नहीं छू सकता इसलिए क्योंकि मैं व्हीलचेयर पर हूँ। उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुमको पहचाना नहीं। लड़के ने कहा कि देखिए
आप शायद मुझे नहीं पहचान रही हैं, आपने मुझे पढ़ाया था। उसके बाद मैं आर्मी में चला गया। बॉर्डर पे मेरे को कुछ गोलियां लगी और चोट की वजह से मेरे दोनों पैर एम्प्यूट करने पड़े। तब से मैं इस व्हील चेयर पे हूँ। लेकिन जब वो मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मेरे दिमाग में आपके शब्द गूंज रहे थे, नेवर से डाई, लाइफ इज प्रेशियस, एंजॉय इट। वही शब्द थे जिन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। हालांकि मैं व्हील चेयर पर हूँ, लेकिन मैं अब अपनी ज़िंदगी सुख से जी रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से आपका पता मिला और आज मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद आप समझ सकते हैं कि वो टीचर वापस अपने घर गई। उनको इतना संतोष मिला कि देखो, मैंने किसी के जीवन में वैल्यू ऐड किया है। ये कहानी थी दो व्यक्तियों के बीच की। एक और कहानी सुनाता हूँ जो मेरी एक अपनी निजी मित्र के साथ हुई है। मेरी एक मित्र है, वो भी इंसिडेंटली प्रोफेसर, सीनियर हैं, अकेली रहती हैं और अब एडजंक्ट फैकल्टी के तौर पर कुछ मैनेजमेंट स्कूल से जुड़ी हुई हैं। उनको भी यही लगता है कि कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कुछ नहीं होता है। अचानक एक दिन खिड़की से बाहर देख रही थी तो एक डॉग बाहर बैठा हुआ था और शायद उसे भूख लगी थी। इनकी सोसाइटी में, कोयम्बटूर में ये रहती हैं, इनकी सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा एजिटेशन है। लोग बहुत शोर करते हैं, आप इन लोगों को खाना मत खिलाइए, ये गंदा कर देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उस लेडी ने कुछ नहीं सुना। मेरी जो मित्र हैं वो मुझे बताती हैं फ़ोन पे कई बार, और वो रात में छुप करके या जब कोई नहीं है तब जा करके उसको खाना खिलाती थी और वो डॉग वापस आकर के, उसको मालूम होता था, उनकी खिड़की के नीचे बैठ जाता था। अल्टीमेटली उसने पप्स भी दे दिए और अचानक जब पप्स दे दिए तो सोसाइटी के लोगों ने उन पप्स को लेकर के शायद बाहर ले गए। उसके पीछे पीछे डॉग जो है फाइनली सोसाइटी से बाहर चली गई। अभी क्रिसमस आया था तो उन्होंने क्रिसमस पे गॉड से प्रार्थना की कि उसको कोई एंजल मिल जाए जो उसका ख्याल करे। तो मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा आप इतना इसके साथ लगी हो, इससे क्या है? कहती है देखो, मुझे मेरी आत्मा में ऐसा लगता है कि ये मुझे अप्रिशिएट करती है क्योंकि ये मेरे नीचे आके बैठती है और ये अप्रिसिएशन मुझे स्ट्रेंथ देता है लाइफ में आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, ये दो छोटी छोटी कहानियां मैंने आपको इसलिए सुनाई कि ये बताती हैं कि अगर आप किसी की भी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो आपकी लाइफ सार्थक होती है। और हम लोगों की जिंदगी में हमारे पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू जो ऐड करते हैं वो होते हैं हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे एक दंपत्ति को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो दोनों टीचर हैं और जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को पढ़ाने में बिताई। तो मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर अशोक बेंद्रे एंड श्रीमती अर्चना बेंद्रे का। नमस्कार जी। नमस्कार। और जैसा कि आपने एवी में देखा होगा, दोनों लोग 75 क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी पढ़ाई में बच्चों के साथ लगे हैं और अपनी अपनी जिंदगी में अभी भी कहते हैं बड़े सुख से हैं। तो मैं शुरू करता हूं। प्रोफेसर सर, आप बताइए अपने विषय में थोड़ा, जिससे कि लोगों को पता लगे कि आपने बचपन में क्या किया और कैसे अब आजकल आप अपना जीवन बिता रहे हैं। धन्यवाद अनिल जी। हुआ ये कि एक साधारण परिवार, बड़ा डिसिप्लिन परिवार, दादाजी घर का कंट्रोल, और जो एक संस्कृति मिली सीधी सादी जिंदगी की, पता ही नहीं था कि हम किस तरफ बह रहे हैं, क्योंकि उन दिनों कोई पूछता ही नहीं था तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, क्या सब्जेक्ट है, क्या करना है। तो हुआ ये कि धीरे 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 जब हम 10वीं में आए तो एक दिमाग बनने लगा, करना क्या चाहिए। जी।
कोई बात नहीं, हम आगे ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ गए। तब भी दिमाग में कुछ ऐसा आने लगा कि कुछ जो हमारे फैमिली में किसी ने ना करा हो, ऐसा कुछ। ये भी आया दिमाग में कि टीचर्स को देखते रहें कि कुछ ऐसा बनने में बड़ा अच्छा लग रहा, लोग सभी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अनिल जी, एक छोटा-सा मतलब इवेंट मैं आपको ऐसे ही बताऊँगा। जी, जब मैं कॉलेज में बीएससी पढ़ रहा था, एमएससी पढ़ रहा था, तो एक हमारे टीचर उन दिनों तो ना तो स्कूटर थे, तो एक साइकिल से आया करते, बड़ी अजीब-सी आर्मी की साइकिल थी, टेढ़ी-मेढ़ी साइकिल थी और डिपार्टमेंट हमारा ऊपर था, फर्स्ट फ्लोर पे था। तो जब वो अप्रोच करते थे गेट ग्राउंड फ्लोर पे, तो ऊपर से चपरासी देखता था हाँ, कि ये आ गए, तो चपरासी भाग के नीचे जाता था जी, और उनकी साइकिल ले लेता था, उनके हाथ से उनका बैग उठा लेता था, साइकिल उनकी पार्क करता था और फिर उसके बाद उनके कमरे तक जाके कमरा खोल के उनका बैग रखता था। जी, फिर जब वो लेक्चर देने हमारी क्लास में आते थे, तो लेक्चर थिएटर छोटा-सा था बहुत, दोनों दरवाजे बंद होते थे, चॉक डस्टर रखा हुआ होता था, चपरासी बाहर बैठा हुआ मिलता था, जब जी, तक उनकी क्लास चलती रहती थी। जी, मुझे इस बात ने इतना इम्प्रेस करा, हम्म, मेरी श्रद्धा तो थी ही थी टीचर्स के प्रति, वो जी, हज़ारों गुना बढ़ गई कि अच्छा, एक आदमी उनको देखिए कितनी रिस्पेक्ट देता है, मैं भी ऐसी जगह पे पहुँचूँगा। तो अच्छा, शिक्षक बनने का जो मुख्य कारण था, एक ये इंसिडेंट था मेरी ज़िंदगी में, जिसने इंटरेस्टिंग। मुझे टीचर बनाया। तो सर आपको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ। जब आप प्रोफेसर हो गए, जी, तो क्या ऐसा चपरासी था? उस समय तो हालात बदल गए थे अनिल जी। उस समय रिस्पेक्ट तो थी, जी, बहुत रिस्पेक्ट थी। मुझे याद मतलब आता रिस है। टीचर के नाम से बहुत रिस्पेक्ट थी। दुकान पे गए आप और पर्स भूल गए जी हाँ, जी और हाँ। पर्स भूलने के बाद जब सामान ले लिया, बैग में डाल लिया और ध्यान आया कि पैसे तो है नहीं, पर्स तो है नहीं, तो दुकानदार ने कहा, "अरे बाबूजी आ जाएँगे, कोई दिक्कत की बात नहीं।" तो वो चलिए, रिस्पेक्ट जी, बहुत थी उन दिनों, बहुत थी उन दिनों। जी, मैंने फ़ॉर्च्यूनेटली 6 महीने सॉरी 1 साल पिलानी में और 6 महीने बीएचयू आईटी में जो अब आईआईटी है, जी, जी। पढ़ाया है। और उतने से पीरियड के भी जब कभी स्टूडेंट्स कहीं मिल जाते हैं, तो बस समझिए बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल सही। जो अनिल जी, जो टीचिंग की बात है ना, वो आपने जो अभी वीडियो दिखाया, आप टीचर को कुछ नहीं मिलता। जी, मैं आपको उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, मैं आज के ज़माने की बिल्कुल नहीं बात करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। लेकिन जो जी, सच्चा टीचर होता है आज भी, जी, वो उसकी एक ही कीमत है साहब, जी, कि उसका जो विद्यार्थी है कहीं मिल जाए, कहीं दिखाई दे, दौड़ के आता है और 100 में 1 विद्यार्थी तो मिलता ही मिलता है। कि आपकी जो आपने कभी पढ़ाया होगा उसे, जी, तो उसके दिमाग में वो देखिए 60 लड़के एक क्लास में होते हैं, 60 बच्चों को पढ़ाते हैं हम, सही बात है। ये पढ़ाया था। जी, तो ये जो कमाई है ना, ये टीचर की असली कमाई है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैम आपने भी शुरू से टीचर बनना सोचा था या आप कैसे आप तो आर्मी फैमिली को बिलॉन्ग करती हैं? नहीं, मैं एक्चुअली आर्मी ऑफिसर थे मेरे फादर। तो बचपन मेरा बहुत ही अच्छा गया, मतलब मैं तो सोचती बचपन क्या, हमेशा अच्छी ही लाइफ रही है। तो मेरी अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, तो अच्छे जो जी, टीचर्स वगैरह मिलते थे, कॉन्वेंट्स अच्छे होते थे। तो मैं तो उस वक़्त मतलब कर मेरे रही फादर। हैं, जी, आप तो बहुत एक्सोटिक कॉलेजेस में स्कूल्स में पढ़ी हैं, दार्जिलिंग और उसके बाद श्रीनगर और जहाँ I was really fortunate, just I should say should be blessed. I was blessed because my father मेरी हर तो जिद पूरी जिद नहीं, मतलब मेरी जो इच्छाएं थी डांसिंग सीखने की, पेंटिंग वगैरह, तो मेरे को सारी उन्होंने करने भी दिया और अच्छे स्कूल में पढ़े। तो टीचर्स अच्छी मिलती, तो मुझे तब भी आई आल्सो हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स। तो मैं हमेशा तभी से सोचता था या तो मैं टीचर बनूंगी या मैं डॉक्टर से बहुत इम्प्रेस थी कि वो अच्छा, जिंदगी देती हैं। तो या जी। तो डॉक्टर बनूंगी या टीचर बनूंगी, ये मेरा बस यही दो मेरा ये थे। तो तो जब प्रोफेसर आगे साहब जैसे कि डॉक्टर तो नहीं बन पाई, नहीं पर लेकिन मुझे जिस स्कूल में प्रोफेसर मैं पढ़ाती थी। प्रोफेसर साहब तो डॉक्टर मिल गए ना आपको?
नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी सारी बहनें भाई ये कहने लगी कि तेरी जो इच्छा थी आज तेरे अपने बेटे में देख ले। तो ये हाँ, मुझे बहुत यस, योर सन इज ए सर्जन, यस, तो एंड बहुत आई एंजॉयड माय टीचिंग लाइफ। वेरी गुड। मतलब स्कूल में मुझे इतना अच्छा लगता, आज भी बच्चे फेसबुक पे है या व्हाट्सएप इस पे उनके मैसेजेस आते रहते हैं। तो बच्चों को जो हमने जैसा पढ़ाया था, बड़े सच्ची बताइए ईमानदारी से पढ़ाए हमने और बड़ी मेहनत भी करी। और हमारा स्टाफ बहुत अच्छा रहा। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जितने थे, प्रिंसिपल वगैरह, उनसे हमारा बहुत ही आज भी बहुत ही अच्छा ये है। और सब लोगों ने मतलब प्यार मिला है वहाँ भी। और आई एंजॉयड माई टीचिंग, तो सारी आप बात। तो आजकल भी बच्चों को हेल्प करती हैं आप? ना अभी जब भी कोई भी आसपास के कोई बच्चा कहते कि हमें पढ़ना है, मैंने कहा आ जाओ, तो मैं मना किसी को नहीं करती। घर पे ही और ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ अभी किसी बच्ची को। दो एक बच्चे ऐसे पढ़ने चाहते हैं तो मुझसे ही पढ़ना चाहते थे, मैंने कहा मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा। और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन तो है ही। सर, आप एक बार बता रहे थे कि कोई ऐसा लड़का कहीं मिला जो आपका स्टूडेंट था और उसकी वाइफ अर्चना जी की स्टूडेंट थी। हाँ, ऐसा ऐसा ये 3 जनरेशन हो गए अनिल जी अब, जिसको पढ़ाया। कभी कभी ऐसा हो गया कि उनके बच्चे मिल गए और उनके बच्चे भी सामने आए। तो 3 पीढ़ियां कई बार ऐसा हो गया। इनका तो एक बार ऐसा मौका हुआ भी। और मैं समझता हूँ कि छोटे शहर में जी, और मेरठ जैसे शहर में, जी, और ये यूपी का भी कल्चर मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा कल्चर है इनका इस मामले में। जी, मार्केट में जा रहे थे, मुंबई वाले एक हमारे भाई हमारे साथ। मुंबई में तो पड़ोसी का पता नहीं कि कौन है पड़ोसी। मैं पूछता हूँ भैया कहाँ है पड़ोसी, कह लीजिए सुबह 6 बजे जाते, रात के 10 बजे आते। हमें तो शक्ल संडे को देखते हैं हम इनकी, तो कुल मिला जी, वो मेरे साथ थे। तो हम जब चलने लगे मार्केट में और अकेला रास्ता था, कोई कुछ था नहीं वहां, तो सडनली आउट ऑफ नोवेयर एक पीछे से आदमी आया। मैंने कहा कौन आ गया भाई, मैं तो डर गया थोड़ा सा। उसने पैर छुए मेरे। हाँ, तो एज द लक में हैव इट, मुझे नाम याद आ गया उनका। मतलब अब तो वो बड़े हो गए थे बहुत सारे। तो मैंने कहा ओंकार आप कैसे यहाँ? अगले सर नाम कैसे याद है, 30 साल बाद मिल रहा हूँ मैं आपसे। तो मैंने कहा वो तुम वही लड़के हो जिसके कि 300 में से 296 नंबर आए थे, एक सवाल तुम्हारा गलत था इसलिए 4 मार्क्स कट गए थे। बॉटनी है, He was shocked. अच्छा, मुझे भी पता नहीं मुझे कहाँ से याद आ गया एकदम, I do not know. Then he introduced his wife, ये मेरी बीबी है। Then he introduced his daughter, said मैम ये आप बच्ची आपसे पढ़ी हुई है। मैंने कहा पढ़ी है। तो इट वाज सच ए प्लेजेंट इवेंट कि मुझे वो अब याद हो गया। और मेरे वो मुंबई वाले जो भाई थे, भाई और भाभी दोनों थे, दे वर रादर अमेज्ड कि हमने मेरठ के बारे में और यूपी के बारे में जो सुना था वो तो बिल्कुल ही उल्टा निकला। तो दिस इज अ गिफ्ट दैट वी हैव, दिस इज अ गिफ्ट दैट पीपल गिव अस टू। सर, आपने शुरू किया था पढ़ाना, जी उस समय की पढ़ाने के तरीके में और आज के पढ़ाने के तरीके में आपको काफी फर्क हो गया है। जी हाँ जी हाँ, फर्क है और मेरे ख्याल से आपके रिटायर होने के बाद से भी बहुत फर्क हो गया है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और अब ऑनलाइन हो गया। हाँ जी हाँ जी। तो आपने तो एक्चुअली तीनों फेज अटेंड किए हुए हैं। आपने तो उस जमाने में भी ऑनलाइन पढ़ाया हुआ था, उड़ीसा में आप बता रहे थे कोई। हाँ, मुझे मौका मिल गया था एक। तो आपको, आप कैसे कंपेयर करते हैं इनको, या ये समय के साथ इवॉल्व हो रहा है तो अच्छा है, जो भी है अच्छा है? ऐसा हुआ अनिल जी, जब हम पढ़ाना शुरू करा तो टू बी ऑनेस्ट जी, कि देखिए नॉलेज अपनी जगह है। जी, क्या आप खूब किताब पढ़िए, इतने बड़े चट्टे के चट्टे टेबल पे रखे रहते थे जब एमएससी करा, याद थोड़ी ना हुए कुछ नहीं ना। वो तो जितना याद है मेजर मेजर याद रहता है, भूल गए। बात क्या होती है कि आपकी फर्स्ट क्लास आ गई, रिश्तेदारों में बहुत चर्चा हुई, बहुत तारीफ हुई, अड़ोसी पड़ोसी खुश हो गए, माँ बाप भी कहने लगे कि इसने तो मेरा नाम ऊंचा करा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, हम बहुत अच्छे हो गए। लेकिन होता क्या है, जब आप लड़के के सामने एक ऑडियंस देखते हैं,
जी। लड़के के सामने चौक से लिखना शुरू करते हैं। हम्म, तो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आपको बड़ा मतलब अजीब सा लगेगा। जब पहली क्लास पढ़ाने में गया तो मेरे जो सीनियर्स थे, इन्होंने कहा कि तैयार होके जाना, ऐसे नहीं चलेगा। हमने कहा भैया तैयार क्या होना, हम तो किताब पढ़ के आए, कह ले देखना क्या होता है अब। तो हमने जो 40 मिनट की क्लास हुआ करती थी, हमने 1 घंटे का पढ़ के गए। और यकीन मानिए अनिल जी, मुझे लगता है 20 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ा पाया हमें। अच्छा, वो टेक्निक आती नहीं थी कि इधर से घुमाओ, कुछ और बात करो, इधर से नए नए आए थे, फ्रेश बिल्कुल। जी, तो हम मतलब किसी तरह से 5-7 मिनट इधर उधर करके बाहर आए। तो दोस्तों ने बताया भैया ऐसे नहीं चलेगा, आराम से इलैबोरेट करके पढ़ाओ, तसल्ली से पढ़ाओ, ये नहीं कि किताब से जो पढ़ के गए वो बोर्ड पे लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। देन इट टुक अबाउट आई थिंक अ वीक और सो। मैं धीरे 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 पढ़ाने की रफ्तार स्लो करी थोड़ी सी, एक्सप्लेन करना शुरू करा। तो वो पीरियड जो था वहाँ, वो एक लर्निंग पीरियड था। जी, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा इसके साथ, जो आपका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, कि यदि आप टाइम के साथ साथ बदलेंगे नहीं आप, तो टीचिंग भी एक ऐसी लाइन है जो स्टैग्नेट हो जाती है। आप पढ़ा नहीं पाएंगे। तो मैंने तो बोर्ड सीखा, फिर मैंने धीरे धीरे वो ओवरहेड प्रोजेक्टर आया करता था, उसे सीखा मैंने। फिर धीरे धीरे स्लाइड्स आती थी बनानी, फोटोग्राफ लेके, वो सीखा मैंने कि स्लाइड्स प्रोजेक्ट हुआ करती थी। और फिर अब तो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीख गया। अब मैं कहीं कहीं वीडियो भी बना लेता हूँ छोटा मोटा। तो यदि आप विद द टाइम नहीं रहेंगे, तो टीचिंग इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग, इट इज अ टेक्निकल थिंग, एंड इट नीड्स, दूसरी बात, टू हैंडल द स्टूडेंट्स इज आल्सो आर्ट। इंटरेक्शन। तो आप जब तक बच्चों के साथ ये नए नए प्रयोग नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, आप अपना नहीं बना सकते बच्चों को। और कुछ कुछ बच्चे बड़े शार्प होते हैं, आपको जो नहीं आता वो सब सिखा के जाते हैं, वो पूछ के जाते जी। नहीं सर, दो चीजें हैं, एक तो कंटेंट है, हैं। जी हाँ। दूसरा उनके साथ इन्वॉल्व होना है। मैंने चूंकि जी हाँ। मैंने भी 1.5 साल पढ़ाया, और लकीली आई वाज वन ऑफ द लकी पीपल हु वर अप्रिशिएटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो मैंने ये देखा कि जब तक उनके साथ इन्वॉल्व आप नहीं होंगे, बिल्कुल सही। तब तक बच्चे आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नहीं करते, नहीं करते, आपकी नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आप पड़ता। किसी भी चीज को कितने थॉरोली प्रेजेंट कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। अनिल जी, तो ऐसा है, जो 60 बच्चे होते हैं ना, 60 माइंड्स है वो अलग अलग, जी 60 हाँ माइंड्स है। सर। एंड आउट ऑफ दो 60 माइंड्स यू कैनॉट सेटिस्फाई ऑल ऑफ देम। तो आपको क्या करना है कि एक कॉमन कहीं पे प्रोसीजर आपको निकालना है। तो कुछ बच्चे तो, अब एक मेरा आपने याद दिलाई इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जिस कमरे में हम बैठते थे उसके बाहर ओपन ग्राउंड है मेरठ कॉलेज में, अब तो बदल गया मेरठ कॉलेज भी। तो लड़के धूप सेकने वहां खड़े होते थे। जी तो मैं क्लास जब लेता था उसके बाद मैंने चौक रखने, डस्टर रखने अपना उस कमरे में आया, तो बाहर लड़के बात कर रहे हैं, अरे यार आज तो कुछ भी नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या पढ़ा दिया। तो मेरे कान खड़े हो गए थोड़े से, मैंने कहा चलो आगे देखता हूँ। तो थोड़ा सा मैंने झांकना देखा, झांका, वहां पर्दा लगा हुआ था। तो दूसरा लड़का कहता है यार हमने तो नोट्स लिख लिए, तू नोट्स नहीं लिख रहा होगा, तू तो इधर उधर कर रहा होगा, हमें नोट्स लिख लिए, घर पे जाके पढ़ेंगे। तीसरा कहने लगा नहीं बहुत कुछ यार, वो किताब से मैं पढ़ के आया था, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, अब थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको एक लाइन से आप जा रहे हैं तो उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 60 के 60 सेटिस्फाई हो। उसके अलावा कुछ लोगों के मन में शरारत होती है, तो वो शरारती भी होते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैम, आप तो लड़कियों के स्कूल में पढ़ाती थी, तो लड़कियां भी शरारत करती है क्लास में? हाँ नहीं शरारती भी थी, पर बच्चे बहुत इंतजार करते रहते कि टीचर कब आए। मतलब कुछ स्पेशली 9-10 के बच्चे तो 11th-12th, मतलब हमारा तो प्रैक्टिकल ऐसा था कि हमें चार्ट्स वगैरह सब ले जाने पड़ते थे, स्पेसिमेंस है, चार्ट्स है, मॉडल्स है। तो बच्चों को तो समझ इसलिए आता था कि हम हर चीज समझा के ले जाते थे स्पेसिमेंस वगैरह। तो होती है दो चार शैतानी थी, पर इस तरह की शैतानी नहीं करी। दे वर ऑलवेज ईगर टू लर्न। बैठे रहते थे कि हमारे
इवन अगर कोई फ्लावर भी पढ़ाना हो तो मैं तो मंगवाती थी कहीं से न कहीं से, और हर एक के सामने प्रोवाइड करके एक एक चीज दिखाती थी, या बुला बुला के, या कुछ हमारे लैब में ले जाके कि हर एक को एक एक स्पेसिमेन में एक एक चीज मतलब समझाती थी, तो उन्हें अच्छा लगता था। जी तो नोटी इस तरह की नहीं थे थोड़े बहुत, पर बहुत ज्यादा वैसे नहीं। एक सवाल जो पीछे छूट गया गलती से, वो ये कि आप तो ट्रांसफरेबल जॉब में थे, आपके फादर, तो आप तो घूमते फिरते मेरठ पहुंची। सर मेरठ में पहले से सेटल हो रखे थे, तो नहीं आप लोग कैसे मिले? पहले मिले फिर शादी वही बता रही हूँ ना मिले? कि एक्चुअली हम 8 बहन भाई, हाँ जी। अब सबके मतलब अलग अलग क्लास में, अब अच्छे अच्छे स्कूलों में ठीक है ना, दार्जिलिंग तक तो ठीक था। अब मेरठ में आए तो स्कूल्स भी अच्छे मिल गए थे भाइयों के लिए भी। अब फादर का जब इधर उधर ट्रांसफर होता था, कभी पहाड़ों पे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो फिर मदर को यहाँ स्टेशन करता, वी हैव टू स्टेशन हियर। तो फिर यहीं से फिर सारी पढ़ाई, कॉलेज वॉलेज सब कुछ यहाँ मिल गया। तो तब तक पहले तो अलग अलग घूमते थे स्कूल मिल जाते, पर कॉलेजेस की प्रॉब्लम होती थी, सब जगह नहीं मिलते थे अच्छे कॉलेज। यहाँ मेरठ में हो गया उसका इंतजाम, तो फिर हम मेरठ में रह गए, और उसके बाद हम यहीं रह गए कॉलेज वॉलेज करके। फिर बस आप किशोर जी को कैसे मिली? कैसे मिले आप हम दोनों, सर्वर कैसे मिले? नहीं बस जैसे इन्होंने बताया था आपको। नहीं नुकसान थे। नहीं नहीं एक्चुअली क्या है, बताओ। हाँ कुछ बताओ आप। नहीं सुरेश जी कर देते हाँ थे। बताओ। देखिए एक्चुअली हम देखिए, कुछ दिन पहले लगता खतौली है मतलब लव कहीं स्टोरी, लव बाहर रह स्टोरी रहे कुछ थे, इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग हमारे शर्मा क्यों नहीं बताइए? शर्मा क्यों रहे ये बता रहे? नहीं नहीं हम मेरठ कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था, तो हम्म, एडमिशन के लिए तो मेरा भाई गया था पता करने, तो उसको प्रोस्पेक्ट लिया था, तो मैंने नाम पढ़ा बॉटनी डिपार्टमेंट में, तो मैंने कहा ये नाम बेंद्रे है करके। तो वो अच्छा भैया ने कहा दिखा, वो ले उसे पढ़ा, चला गया, मिल मिला के आ गया, और बस पिताजी फौरन गए और इनसे पूछताछ करके फिर मेरा बायोलॉजी डिपार्टमेंट में जूलॉजी में मेरा एडमिशन वगैरह हो गया। तो दैट वाज जी द फर्स्ट टाइम कि इनका उनके साथ पिताजी और उनके साथ जान पहचान हुई। और मतलब बाय चांस कि हम जब रहने आए तो इनके आसपास ही घर मिल गया हमारा, पता चला कि वो भी यहीं रह रहे हैं हमें। फिर पता चला कि इनके पेरेंट्स आए तो हमारे पेरेंट्स से मुलाकात हुई, बस तो फिर बात वहीं से शुरू। तो सामने वाली खिड़की का चक्कर था। नहीं ये पड़ोस वाली खिड़की का। नहीं फिर मैं जूलॉजी में थी और ये बॉटनी में थे, तो थोड़ा सा ये हो सर जाता। सर आप रिटायर जब हुए उसके बाद आपने प्रैक्टिकली रोटरी क्लब ज्वाइन किया। हाँ जी हाँ जी। तो नॉर्मली रोटरी क्लब मैंने देखा है लोग ज्वाइन करते हैं जब वो यंगस्टर्स होते हैं और उनको लगता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने रिटायर होने के बाद ज्वाइन किया, तो क्या मोटिवेशन था उस समय रोटरी क्लब ज्वाइन करने का? उसका भी मोटिवेशन मैं बता रहा हूँ आपको। क्या हुआ कि फिर अपने पास माय टीचर, मैं एक इंटरनेशनली नोन बॉटनिस्ट रहे जिसकी वजह से मैं मेरठ आया था। तो ये कहते थे भाई थर्सडे को उनके पास मत जाना। अच्छा तो मैंने पूछा थर्सडे को क्यों नहीं जाते भी, क्या बात है? तो कहने लगे रोटरी क्लब की मीटिंग्स में जाते हैं, वो प्रेसिडेंट है वहां और काफी काम करना पड़ता। जी तो हम थर्सडे को नहीं जाते थे उनके पास। जब मैं रिटायरमेंट के आसपास आया तो मेरे दो एक मित्र और भी रोटरी क्लब में वहां थे। तो मैंने कहा भाई अब तुम क्या करते हो वहां? तो कहने लगे हमारे गुरुजी ने हमें यहाँ इंस्टॉल कर दिया, मतलब छोड़ दिया है। अब हम गुरुजी का, वो छोड़ चुके थे रोटरी क्लब तब तक, जो काम है वो आगे बढ़ा रहे। तो कहने लगे आ जाओ तुम भी आ जाओ। हमने कहा चलो हमारे मित्र है एक हाथ दो, हम भी चले चलते हैं। तो जब तो आई वॉज इन सर्विस, जब मैं गया 2-3 साल रह गए थे मेरे सर्विस के। एंड देन आई 2-3 साल तो मुझे ऐसा लगा कहाँ फंस गया मैं, क्योंकि काफी एल्डरली लोग भी थे, मिक्सचर था, मिक्सचर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एज। बट देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग। उसमें हमारे रोटरी के शब्दों में फेलोशिप कहते हैं। फेलोशिप मतलब उठना बैठना गपशप लड़ाना, एक दूसरे को समझना। तो वो हम एंजॉय करने लगे धीरे धीरे धीरे। तो जैसे ही मैं एंजॉय करने लगा लोगों ने मुझे खींचना शुरू करा कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम यहाँ भी आ जाओ, तुम वहां भी आ जाओ। तो मैं मेन स्ट्रीम पे तब से हूँ फिर रोटरी के, और अब तो मैं खूब एंजॉय करता हूँ।
फिर तो आप प्रेसिडेंट तक गए और उसके बाद आप फैकल्टी भी बन गए हैं, तो हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ। और वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सोशल वर्क करने का भी टाइम मिला। काफ़ी, बहुत हर साल हमारे कहते हैं अनिल जी, एक तो दान देने की प्रवृत्ति बढ़ाते हैं हम लोग, जी। कि जितना आप दोगे, हुँ, उतना ही आपको वापस मिलेगा, एक कहावत है ये। जी। तो ये कहावत हमारे यहाँ भी है हुँ, हुँ। और हम लोग अब देखिए मैं एक आपको छोटी-सी बात बता रहा था कि क्या वर्क होता है रोटरी में और कितना आनंद आता है उसमें। जी। एक छोटा-सा है, मेरे समय पे हुआ था इसलिए मैं वही कहानी सुना रहा हूँ, बहुत कहानियाँ ऐसी तो जी। कि किस न एक कोई बहुत गरीब सी औरत आई और उसने कहा मेरे 4 साल के बच्चे के हार्ट में छेद है हाँ, और हाँ। मैं तो पैसा खर्चा नहीं कर सकती हुँ, और ये बच्चा मेरा यही सहारा है मेरे लिए, आगे बढ़ेगा तो कुछ करेगा तो यही मुझे खाना-पीने का सहारा है। जी। तो बाबूजी कुछ हो जाए। हुँ, तो हमारे एक दोस्त ने प्रपोज़ल लाया था, ये बात हमारी हुई, हमने कहा हम देखते हैं। तो 2-4 लोगों से बात करी, कुछ रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं आया। तो मेरे जो दोस्त ये केस लाए थे कहने लगे एक बार जो है अब तो तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, पैसे माँगने पड़ेंगे। मैंने कहा जी माँगा आज तक नहीं ज़िंदगी में मैंने कभी, दिया ही दिया है। कहने नहीं, नहीं ये पहला मौका है तुम्हारा, तुम माँग के देखो देखो। दुनिया में देनदार मतलब दे जिसे हम कहते हैं कि बहुत दानवीर लोग जो है कमी नहीं है उनकी। हुँ। मैं डायस पे खड़ा होके उन्हें मैंने कहानी सुनाई है और मैंने कहा मैंने 5,000 रुपए इस फंड में मैंने दे दिए हैं, हमें 90,000 रुपए चाहिए इस समय। मेरे ये कहने की देर थी, मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे, करीब 75,000 रुपीज़ कलेक्ट। अरे वाह! तो मेरी भी हिम्मत बढ़ गई थोड़ी-सी, मैंने कहा कि भैया आप तो 75,000 दोगे, 15,000 के लिए क्यों पीछे देख रहे हो? हुँ, 15,000 तो आप में से कोई ना कोई दे ही सकता है। जी। 2-3 लोग फटाक, फटाक, फटाक और आप देख लीजिए 90,000 रुपए इकट्ठे हो गए। उस बच्चे का एम्स में ऑपरेशन हुआ और वो बच्चा स्वस्थ हो गया। वाह! तो ये इस प्रकार के काम स्कूलों में स्टेशनरी देनी, स्कूलों में हमने ब्लैक बोर्ड्स दिए, स्कूलों में वाटर कूलर्स लगाए हमने, बैग्स बाँटे, किताबें बाँटी, बहुत हैंड कुछ हैंड किया है। पंप्स लगाए हमने। हम्म, मतलब क्या बहुत काम इस तरह से, बहुत आनंद आता है, बहुत वी एन्जॉय। सर इसके अलावा आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं कि एक तो पढ़ाने का काम अभी भी आप करते हैं। आपने बीच में कोचिंग की मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, हाँ। उसके बारे में ज़रा बताइए वो कोचिंग में आप कैसे गए? और अभी तो आप ये बता रहे थे कि मेरठ में जितने डॉक्टर हैं आधे से ज़्यादा आपसे पढ़े हुए हैं। हाँ जी, सही कह रहा हूँ। आप तो बॉटनी और फिर वैसे तो थोड़ी-सी अतिशयोक्ति होगी, आधे से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ है। आई शुड बी ऑनेस्ट इनफ। क्या हुआ कि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। जब मैं पढ़ने लगा, तो पढ़ाने का शौक हो गया और जब बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं आपको, तो आप एनकरेज हो जाते हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, तो मुझे ऑफ़र आ गया एक जी। कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कि क्या आप पढ़ाएँगे? आई सेड ओके। जी। तो जब मैं पढ़ाने लग गया, तो मैंने देखा बच्चे जो है, ये जो कोचिंग वाले बच्चे हैं, जो ट्रूली डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो बहुत जी। मेहनती है और बहुत पढ़ाकू भी है। मतलब अरे! नॉर्मल बच्चे बीएससी के क्लास में जो पढ़ते थे, उसके मुकाबले में ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियस और इंटरेस्टेड लगे पढ़ाई में। तो उनके साथ मैं जी। जुड़ गया। तो मुझे याद है अभी भी देखिए कितना पेरेंट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं आपको मुझे याद आ गया एकदम इसलिए एक ब्रिगेडियर साहब जी। अपनी बेटी को भरी धूप में मई में मेरे पास लाते थे। मैं घर पे 5-7 बच्चों को पढ़ाता था तब तो। जी। मेरा घर बहुत छोटा-सा था, फर्स्ट फ्लोर में ऊपर रहता था और तपा हुआ रहता था गर्मी में बिल्कुल। जी। तो वो 4 बजे आते थे और अपने बेटी को छोड़ने के बाद गाड़ी में बैठे रहते थे वहाँ। जी। अब मैं 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं जब छोड़ता था उस बिटिया को पढ़ा के, तो मैं देखता था कि ब्रिगेडियर साहब तो नीचे बैठे हुए हैं। जी। मुझे कुछ पहले तो समझ में नहीं आया, मैंने सोचा ये तो इनका ड्राइवर आता होगा, छोड़ के चला गया होगा। तो जब मैं 2-3 बार बिटिया से पूछा है कि पापा दोबारा आए क्या? नहीं, 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 पापा तो यहीं बैठे हुए थे। अच्छा। हम्म, तो मैं वो भी डॉक्टर थे, वो एएमसी में आर्मी मेडिकल कोर में थे वो। तो मैं जी। नीचे गया, मैंने कहा ऐसा तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा कि आप नीचे खड़े हुए बैठे हुए गाड़ी में तपती हुई धूप में, आप मेरे घर में ही बैठ जाओ। जी। और
घर में बैठ गए वो। दो एक दिन बात करने के, डॉक्टर साहब ये दो मैं आपके कमरे में बैठता हूँ और खाली बैठे बड़ा बुरा सा लग रहा। मैं वहाँ गाड़ी में तो कम से कम गाने तो सुन लेता था। मुझे कुछ किताब दे दो बायोलॉजी की आप। तो आप देखिए द हाउ गुड वाज द पर्सन। मैंने कहा कि ये मेरी किताबें रखी है, यहीं से पढ़ लीजिएगा, आपको जो चाहिए उठा लीजिए। तो द जेंटलमैन स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स, और उसके बाद वो मेरे से डिस्कस करते थे कि मैं बेटी को ये टॉपिक कैसे समझाऊंगा या इसमें क्या समझाना चाहिए। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे कांटेक्ट में आए, शरारती भी आए, जैसे आप अभी पूछ रहे थे। बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको। कोचिंग में पेनिस आपके इंजेक्शन की बोतल आती है ना, उसमें दाल के दाने डाले हुए और उसमें एक पाइप रखा हुआ और दूसरी तरफ से दूसरा पाइप निकला हुआ, और एक फूंक मारते ही दूसरे पाइप से दाने अगले वाले के सिर पे लग रहे, और वो बोतल अपने जेब में डाल ली उसने। फिर दोबारा कौन कर रहा है सर, ये कुछ लग रहा है, अब अगले वाला बच्चा। ऐसे भी बच्चे होते थे, पकड़ना मुश्किल होता था, लेकिन जो इंटरेस्टेड होता था, तो मैंने देखा कि जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो दबोच लेता है दूसरे को जो डिस्टर्ब करता है। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आए मेरे पास, और बहुत, अब भी मैं कभी जाता हूँ मुझे बड़ी शर्म आती है वैसे ये करना। मैं गया डॉक्टर के पास, तो मैंने कहा भाई उनसे जरा कह देना डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब सबको छोड़ के मुझे बुला लेते हैं अंदर। तो आई फेल्ट एम्बेरेस्ड। मैंने कहा ये लोग 2-2 घंटे से बैठे हैं डॉक्टर साहब के पास और मुझे हाथी हाथी बुला रहे। तो फिर मैंने एक आध दो बार पैसे देके चुपचाप बैठा रहा, नाम उल्टा पुल्टा लिखवाया, चुपचाप गया उनके। उन्होंने हाथी हाथ फीस भी वापस करी, कहने के सर आपकी वजह से तो कुर्सी पे ही बैठे हैं हम लोग। तो देयर आई फील ऑनर्ड, आई फील वेरी ऑनर्ड। सर आपने बुक्स लिखी, बुक्स लिखना शुरू करने का कोई खास कारण, हाँ या जी, हाँ जी। प्रोफेसर्स बुक लिखते हैं इसलिए आपने बुक लिखी? ऐसा हुआ कि हम जब पढ़ाते थे तो एक हमारे यहाँ प्रैक्टिकल्स बहुत है बॉटनी जूलॉजी में। मैं बॉटनी का था, वहाँ प्रैक्टिकल्स बहुत है, जी। और बच्चों को हम समझाते थे और बच्चे फिर उसी तरह से करते थे। और जब हमने ज्वाइन करा था तो हम बच्चों के हर एक सीट पे जाकर वो क्या कर रहा, कैसे कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, ड्राइंग कैसे बना रहा, सब देखा करते थे। तो एक किताब हमारे हाथ पड़ी जो कि इसको इंस्ट्रक्शंस उसमें ये दे रखी थी सारी, अच्छा। लेकिन इट वाज सच अ पुअर बुक, पुअरली रिटन, पुअरली प्रेजेंटेड। हमारे यहाँ उसको डायग्राम्स कहते हैं, वेरी पुअर डायग्राम्स। तो मेरे मित्र और हम दोनों साथ बैठे थे, हमने कहा हम किताब इससे तो कई गुना बढ़िया लिख देंगे। तो हमारे एक सीनियर थे, कहले अच्छा इतनी हिम्मत है तुमने, कहा चलो मैं तुम्हें पब्लिशर के ले चलता हूँ, मेरठ तो पब्लिशर का हब है। जी हाँ, जी हाँ। हमारे अपनी फैमिली में भी हम पब्लिशर्स। हाँ, आपके फैमिली में भारत भारती प्रकाशन है उनका, वो उनके वो हमारे विषय में से संबंध बिल्कुल नहीं रहा उनका कभी। तो हम जब गए उनके पास, तो वो दे आर नॉट कन्विंस्ड, जो पब्लिशर थे, कि हम इनसे किताब लिखवाए, नए नए लड़के आए हैं अभी और मार्केट में हमारी किताब तो बिकेगी नहीं। तो वी हैड टू वर्क वेरी हार्ड। रात के 2-2 3-3 बजे तक हम दोनों बैठे थे, खुद वो ड्राइंग्स बनाते थे हम लोग, और पब्लिशर के साथ डिस्कस होता था सब कुछ। तो हमें करीब 2 साल 2.5 साल लग गए पहली किताब लाने में। अच्छा। आई एम हैप्पी, अभी भी चल रही किताब, बहुत तो अच्छा लगा। कई किताबें हैं आपकी? हाँ, मेरी बेसिकली तो 4-5 किताबें हैं। अब क्या होता है, यूनिवर्सिटी में सिलेबस चेंज होते हैं हर बार। जो फ्रेमवर्क है हमारे एजुकेशन का, उसमें ये है कि 30% ऑफ द सिलेबस, एक कॉमन सिलेबस बनाया है सरकार ने, 30% ऑफ द सिलेबस कैन बी चेंज बाय यूनिवर्सिटीज ऑन देयर ओन। तो वो 30% चेंज जो होता है, हमेशा किताब में हमें नया डालना पड़ता है। तो चेंज कर, एक यूनिवर्सिटी ने 30% कुछ करा, दूसरे यूनिवर्सिटी ने 30% और दूसरा करा, तो उसमें लगे ही रहते हैं हम, लगे ही रहते हैं। फिर कुछ तो इंटर के लिए भी किताबें लिखी है अभी, सीबीएसई के लिए भी किताबें लिखी है अभी, तो थोड़ा सा अभी किताबें चल रही है। सर आप कुछ बता रहे थे कि अभी जो कुछ किताबों पे आपने काम अभी रोका हुआ है क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी किधर ले जाएगी, क्या करेगी? जी हाँ, जी हाँ। क्या हो गया कि जब शुरू हो गया पैंडेमिक, लॉकडाउन लगा, तो बड़ी 2-1 किताबें पाइपलाइन में रिवीजन की थी वो। तो लिखना क्या मतलब, उनको रिवाइज करना शुरू करा। तो
पूरा रिवैम्प कर रहे थे किताबों को। जी नई नई चीजें आई है, नई नई चीजें मिलती है। अब जी वो सडनली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो हमें अब यही नहीं पता कि कोर्सेज क्या होंगे, कंटेंट्स क्या होंगे, किस हद जी तक एक्सटेंशन होगा सब्जेक्ट्स का, टॉपिक्स का। तो हमने वहाँ एक रोक लिया। जब ये 3/4 काम हो गया था, मैंने कहा चलो काम तो आएगा ही है, हाँ। एग्जैक्टली हम रीशेप करेंगे फिर उनको। अच्छा सर, दूसरा आप कुछ बात कर रहे थे कि आप कुछ पावर पॉइंट मटेरियल तैयार कर रहे हैं जो आगे टीचर्स को या स्टूडेंट्स को काम आए। जी, मैं जब कोचिंग में पढ़ाता था अनिल जी, तो क्या हुआ कि आपने जैसे मुझे शुरू में पूछा था, मैंने अपने आप को थोड़ा-सा ढाल लिया दूसरे तरीके से और मैं पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशंस देने लग गया था। तो लड़कों को जो नई-नई डायग्राम्स दिखाई देते, अब मैंने जैसे कहा एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल कौन है? नोबडी नोज़। आप बता रहे हो उनको, ठीक है कोई बात नहीं, तो उन्हें लगा कि सूट बूट टाई पहनने वाला कोई आदमी तो नहीं था। तो जब मैंने एरिस्टोटल की फोटो सामने दी थी, अच्छा ये एरिस्टोटल था। तो हमने स्वामीनाथन है हमारे यहाँ, एमएस स्वामीनाथन थे, जो हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन में बड़ा जबरदस्त उनका कंट्रीब्यूशन था। अच्छा ये स्वामीनाथन थे क्या? अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप जब उनकी बायोग्राफी बता रहे हैं, उनके बारे में ये पौधा ऐसा था क्या? तो उनको लगता था अरे बाप रे! हमने तो ये देखा हुआ था, कल ही हमारे घर में ही लगा हुआ। कहने लगे। इस तरह से मेरी जो थोड़ी-सी इच्छा हुई कि इनको ये दिखाता चला जाऊँ। तो मैंने बहुत सारे पावर पॉइंट्स बना लिए थे और मैं कोशिश करता था बच्चों को कि ये दिखाता चला जाऊँ, क्योंकि बॉटनी विजुअलाइज़ेशन बहुत है उसमें, बहुत विजुअलाइज़ेशन है। तो मैं वीडियोज़ भी लाता था कहीं न कहीं से बच्चों को दिखाने के लिए। तो कुछ मैंने बना लिए थे। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ आई एम कंप्लीटिंग देम और कुछ उनको इम्प्रोवाइज़ेशन कर रहा हूँ, नए-नए टेक्निक्स के साथ कोशिश है मेरी। तो कुछ तो बन गए हैं। मेरी इच्छा ये है कि ये मेरे पास ना पड़े रहे, कहीं न कहीं किसी के काम आ जाए। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट कैन आई डू विद देम। आप कुछ वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की बात भी कर रहे थे। हाँ, मुझे क्या हो गया कि मैं लॉकडाउन में तो फँस गया, कहीं जा नहीं पाते, कहीं आ नहीं पाते, किसी से सलाह नहीं ले सकते। अब जब थोड़ा-सा ये कम हो जाएगा तो मेरी इच्छा ये है किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से मैं ये सीखूँ थोड़ा-सा कि लेक्चर देते-देते मेरे पावर पॉइंट भी दिखे और मैं इंटरैक्शन भी कर सकूँ स्टूडेंट से। यदि ऐसा कुछ प्रोग्राम ये बन सकता है, तो आई एम रियली इंटरेस्टेड। तो सर इसमें दो चीजें हैं, मैंने आपको उस दिन जिक्र भी किया था। आज की तारीख में कुछ वीडियो लेक्चर्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं, दैट इज हाँ जी, नंबर हाँ वन। जी। सेकेंड थिंग इज आज की तारीख में ई लर्निंग नाउ इज बिकमिंग वेरी हाँ पॉपुलर। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो प्रोबेबली एक तरीका ये हो सकता है कि आप कुछ ई लर्निंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें हाँ जी, हाँ और जी। आप अपना कंटेंट कैसे उस फॉर्म में दे सकते हैं जिसको कि वो लोग यूज करके पब्लिश हुँ, कर सकें, हुँ। क्योंकि ये लेगेसी आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हाँ जी। और आज की तारीख में जैसा आप कह रहे हैं कि सर प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं जी। और कि आप मैं मैडम हम लोग सब अच्छे स्कूल्स में और अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट रहे या आप वहाँ पर एसोसिएटेड रहे। आज की तारीख में जो प्राइवेट स्कूल्स मशरूम हो रहे हैं वहाँ पर फैकल्टी को भी नहीं पता होता मुझे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। हुँ, हुँ। ये काफ़ी एक चीज़ है। तो जो आपसे जब ये डिस्कशन हो रही थी तो मुझे लगता है कि ये जो मटेरियल है इसको आप टीचर्स के लिए भी कुछ कर सकते हैं कि उनको काम आए, क्योंकि हम्म, आज की तारीख में टीचर्स को कोई नहीं बताता क्या करना है। एक बात सही है बिल्कुल आपकी, ये एक्चुअली उनके काम आ जाए और वो पढ़ाने लग जाए, इसको इम्प्रोवाइज़ कर ले अपने आप या एडिट कर ले, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और उसको यदि वो यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि किसी टीचर हो, स्टूडेंट हो या इंस्टीट्यूशन हो, मैंने ऑफ़र भी करे 2-3 इंस्टीट्यूशंस को, लेकिन वो कुछ उसका रिस्पॉन्स उतना बढ़िया नहीं आया। तो सर पोस्ट पेंडेमिक शायद रेस्पॉन्स चेंज हो जाए। हाँ, हो जाए, पॉसिबल है, आई एम वेटिंग फॉर इट एंड मैं सर विद योर काइंड परमिशन आई वुड लाइक टू टेल, मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि सर की 1989 में बाईपास सर्जरी हुई थी
और उसके बावजूद आज 78 इयर्स की एज में सर 24 घंटे एक्टिव हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं किताबें छोड़ जाऊं, मैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन छोड़ जाऊं, अपनी लेगेसी जो लोगों के काम आए। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग कहीं पर भी हों, कभी भी हों, कैसे भी हों, कुछ ना कुछ हमेशा कर सकते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए या अपने साथ के लोगों के लिए छोड़ सकते हैं। मैम, आप तो एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही हैं, सर तो शायद नहीं रहे। तो आपको तो ड्रामेटिक्स का भी शौक है, मैंने आपकी कुछ पिक्चर्स देखी थी स्टेज पर भी, और भरतनाट्यम तो आपने सीखा भी है। तो आप तो स्कूल्स में फंक्शंस के लिए भी तैयारी वगैरह कराती रही होंगी। बहुत कराती थे। वो तो जी एक्चुअली होता यही था कि हमें तो दिया ही जाता था काम कि हमें ये कराना है करके, जी जी तो हम अपनी तरफ से अच्छे से बच्चे हम ही इन्वॉल्व रहते थे उनके साथ। वो अनिल जी, भारतनाट्यम अब काम आ रहा सिर्फ हस्बैंड के लिए, उनको नचाती रहती है औरतें अब तो। तो सिखाती हैं तो आप तो काम आप सीखे, पता नहीं कितना सीखे हैं कितना नहीं सीखे हैं, I don't know। मैं सीखता तो नहीं, लेकिन 2-4 स्टेप्स तो इधर उधर उल्टी पुल्टी लेनी ही पड़ती है अब तो। मतलब हर घर में हर स्त्री अपने हस्बैंड को भरतनाट्यम सिखाती है। करती है। देखिए, कुछ लोग सुन के बहुत खुश हो रही होंगे और कुछ लोगों को शायद अफसोस हो रहा हो कि हम तो नहीं सिखा पाए। तो maybe you can start an online course on how to make your husbands dance on your tune। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर शुरू करती है तो मैं प्रमोशन कर दूंगा आपके लिए। So nice of you. सर, आज की तारीख में आप अपने आसपास या अपने कंटेम्परेरीज या आगे लोगों को मोटिवेट और मेंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं अदर देन सब्जेक्ट? बताओ बताओ। नहीं, मैंने क्या शुरू करा था, मेरी बहुत इच्छा थी कि किसी न किसी तरह से बच्चों से कनेक्टेड रहूं मैं। तो मैं यहाँ के बहुत बड़ी लाइब्रेरी को ये करती हूँ, वहाँ से बुक्स लाती पढ़ती हूँ। तो मैंने सोचा इन बच्चों को भी 6, 7, इवन नर्सरी केजी वालों के भी मैं अपने घर में वहां से बुक्स लाती थी और अपने घर में रखती थी। और बच्चों को मैंने ये कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि जिसे चाहिए यहाँ से पढ़ने के लिए ले जाया करें। रीडिंग टूर्स, आई वांटेड देम टू रीड, क्योंकि आजकल बच्चे सिर्फ मोबाइल टीवी ये देखते हैं, रीडिंग नहीं करते बच्चे। तो मैंने वो शुरू तो करा, पर ये पैंडेमिक की वजह से सारा बंद हो गया है। तो अब फिर दोबारा स्टार्ट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर तो। बट आई वांट दैट सम सॉर्ट ऑफ, मतलब कि बच्चे पढ़े किसी तरह से। पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो फिर शुरू हो जाएगा, आपके पास तो कलेक्शन तो है ही। हम लोग कोशिश करेंगे। इवन छोटी छोटी बच्ची अड़ोस पड़ोस की केजी की, नर्सरी की, वो भी आ जाती थी हाँ, लेने। वो अपनी किताब कुछ पलट लेती थी तो हमें सेटिस्फैक्शन था कुछ। वो मैं ये कह रहा था, आप मोटिवेशन की बात कर रहे थे अनिल जी। मैं एक कोटेशन, एक आपके किसी पहले जो स्पीकर थे उन्होंने भी उस किताब का रेफरेंस दिया है। एक रोंडा बायरन की सीरीज है बुक्स की, उसमें से एक किताब मुझे बड़ी अच्छी लगी, द सीक्रेट नाम की। किसी आपके स्पीकर ने भी उसका जिक्र करा। मैंने भी वो किताब पढ़ी है। पढ़ी है ना आपने? उनकी अनिल जी 2-3 किताबें और है। तो एक मैं पढ़ रहा था उनकी किताब, और हीरो। तो हीरो में मुझे एक छोटा सा से 2 लाइनें मिली, और 2 लाइनें मुझे याद इसलिए रही। वो उन्होंने कहा, the greatest frustration for the mankind is what do I do with my life। तो मुझे याद आ गया सडनली, हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जब जाते थे, यही सवाल मैं अपने साथियों से एक से पूछता था। मैंने कहा, भाई हम लोग रिटायर हो गए, अब तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, जस्ट लुकिंग आफ्टर द किड्स ऑफ योर, मतलब तुम्हारे पोते हैं, ग्रैंडसन्स एंड ग्रैंडडॉटर्स, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। इस सोसाइटी के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए है कोई काम करने लायक हम? तो फिर मुझे एक दूसरा सेंटेंस मिला, द टेस्ट दैट योर मिशन ऑन द अर्थ इज कंप्लीट, द आंसर इज सिंपल, इफ यू आर अलाइव इट इज नॉट कंप्लीट। तो आप जब तक जिंदा है, जब तक आप जिंदा है इस पृथ्वी पे, तो आपका मिशन इनकम्प्लीट है।
जी, करते रहना तो चाहिए। मैं सोचने लगा कि वाकई इस सेंटेंस में तो बड़ा दम है। तो जी, मैं ये सोचता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ कि जी। बुढ़ापा वर्ड निकाल दो अपने दिमाग से। नहीं, नहीं, वो तो कहाँ वो है? एज फैक्टर है तुम्हारा। और जब तुम अपने शरीर को अपनी जिंदगी भर घिसते रहे, इस्तेमाल करते रहे, तो कुछ तो कमी आएगी ही आएगी। तुम जैसे तुम्हारी कलम भी घिसती है, तुम नई हाँ, कलम लेते हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यू हैव टू बी ऑन योर ओन। जी, एक तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपना चाहिए, दूसरे पे आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपको कोई कभी कमी नहीं आएगी। नंबर 2, फिजिकली आप स्वस्थ रहे, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा इसके लिए। और तीसरा, आप किसी ना किसी के हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जहां जरूरत पड़ती है। अब छोटी सी बात और दिमाग में आ गई, जब मैं रोटरी क्लब में हूँ, आज 13 वर्षों से मैं किसी ना किसी तरह से उनसे लगा हुआ हूँ। जी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों लगा हुआ हूँ। मेरे यहाँ एक सोसाइटी है, एक हाउसिंग सोसाइटी, उसका भी मेंबर हूँ। 21 साल से उनके साथ लगा हुआ हूँ। तो क्यों लगा हुआ हूँ? तो मैं एनालाइज करता हूँ, तो मुझे लगता है ऐसा कि मैं उनके कहीं ना कहीं काम में आता हूँ। हुँ, और वो छोटे मोटे काम है जो मेरे पर्सन फिजिक और मेरे उम्र को देखते हुए मिलते हैं मुझे। और डॉक्टर साहब जरा उनको मना लेना, वो कल हमारा ये काम नहीं कर रहे, और ये जरा थोड़ा सा कर देंगे तो हमारी इमेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आई गो एंड टॉक टू हिम। तो जी, ये जो उपयोगिता है, ये छोटी छोटी चीजें जो होती है, इससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है सोसाइटी में, एक आपको अच्छा स्थान मिलता है। और ये मोटिवेशन है। यदि आप घर में बैठोगे और क्रिप करते रहोगे, मैंने तो आज न्यूज़पेपर पढ़ा, मैंने तो टीवी देखा, मुझे अब तो कुछ काम ही नहीं है, हाँ, तो फिर तो कुछ नहीं, फिर तो आपकी लाइफ जो है, योर मिशन इज ओवर। तो मैंने इसीलिए वो आज शुरू में वो अपनी एक मित्र की अपनी मेरी एक मित्र ने जिनकी कथा सुनाई कि जी देखिए हाँ, वो जी एक हाँ, डॉग है, सिर्फ उसको वो फीड कर रही हैं और वो जब वो अब उसको फीड नहीं कर सकती तो उसके लिए प्रार्थना कर रही हैं। जी। उसी में उनको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, आई एम एडिंग वैल्यू। तो ये सैटिस्फैक्शन तो हमको ढूँढना पड़ता है, बिना ढूँढे तो नहीं मिलेगा। नहीं, और जी, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हम सब कर सकते हैं। कहीं न जैसे आपने बताया कि आपके पास अब इस माध्यम से काउंसलिंग के लिए भी बच्चे आने लग गए, कहाँ आते हैं। आपसे कांटेक्ट करते हैं बच्चे, सर तो आपका बच्चे कम आते हैं, बड़े ज़्यादा आने लगे हैं अभी। बहुत ही अच्छा है ये तो। दिस इज सो नाइस। नहीं, बहुत अच्छा है ये कि तो किसी तरह से सोसाइटी से आप ये कर यू आर रहे हो। सेटिस्फाइड, यू आर, जी हाँ, जी मतलब हाँ। आपने, तो मैं समझता हूँ कि ये 3 चीजें यदि आप सेल्फ इंडिपेंडेंसी जिसमें डेवलप करते हैं, फाइनेंस, हम्म, हेल्पिंग हैंड होना चाहिए कहीं ना कहीं, और मेंटली अलर्ट हो आप, तो मैं समझता हूँ कि सर आपको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि मैं कैसे रहूंगी। 4 लोगों के बिल्कुल बीच सही में बात है। घूम रहे हैं, 4 लोगों के पीछे बात कर रहे हैं, तो दैट वुड हेल्प यू। हमने ये सीरीज़ शुरू की थी, हमने ये सीरीज़ इसीलिए शुरू की थी कि लोग अपने जैसे लोगों से मिलें, उनकी जी, बात सुनें, वो क्या करते हैं जिससे उनको प्रेरणा मिले। सर मैं आपको बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ 4 दिन पहले हुई। मेरे एक कलीग हुआ करते थे, आज से 40 साल पहले हम किसी एक सेम कंपनी में काम करते थे। वो अब कनाडा में सेटल हो गए हैं। अचानक से उन्होंने फेसबुक से मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को उस दिन मैसेज किया, फिर मेरे से बात हुई तो कहने लगे, "भाई मैं तुम्हारे पिछले 3 प्रोग्राम देखे और मेरी तो लाइफ चेंज होने लगी है।" वो भी रिटायर हो गया है, अभी 3 साल हुए हैं उसको रिटायर हुए। जी, जी, कहते मेरी लाइफ चेंज होने लग गई है। क्या हुआ? कहते मुझे सडनली मुझे रियलाइज़ किया मैंने कि मैंने इंजीनियरिंग जब करी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग किया था, तो अच्छा कॉलेज है, सब कुछ है। कहता अब मुझे लगता है कि मैंने कुछ किताबें तो सिर्फ़ इम्तिहान पास करने के लिए पढ़ डाली, सीखा कुछ नहीं। तो पहली बात तो ये कि मैंने अपनी वो पुरानी किताबें निकाल के दोबारा पढ़नी शुरू की हैं। ओहो। हम्म, मैथ्स दोबारा कर रहा हूँ। जब मैं करने बैठा तो मुझे पता चला कि मेरे अगल-बगल में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे मैथ्स में वीक हैं, तो मैं उनको पढ़ाने लगा हूँ। वेरी नाइस, हम्म, वेरी नाइस। अब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हम लोग इनको ये इस प्रोग्राम को करने का सिर्फ़ उद्देश्य यही है कि लोगों को समझ में आए कि हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है चलिए। और हम कर सकते हैं। जी, एक सर मेरे छोटी सी बात बताऊं बीच में। हाँ, अम, प्लीज़, प्लीज़। हाँ, मैं जब बीमार था, आपने जिक्र कराई तो इसलिए मैं आपसे उसको, उसका भी खुद ही, 89 में व्हेन आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, तो मेरे बगल में एक पेशेंट और थे, एल्डरली पर्सन।
और वो अपनी भगवान की मूर्तियां लेके फोटो लगा के सोफे पे वही पूजा करने लगे दूसरे दिन, जिस दिन एडमिट हुए। तो मैंने कहा एक आप मुझे बात बताएंगे कि आप क्या मांग रहे हैं? तो कहने लगे मैं कह रहा हूँ कि भैया मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, मुझे बाईपास ना करनी पड़े। तो मैंने कहा आपको डॉक्टर ने बाईपास बता रखी है? मैं आई वाज मच यंगर टू हिम। तो कहने लगे जी हाँ बाईपास बताइए, और मैं बाईपास से डर रहा हूँ कहीं मैं खत्म हो गया तो मेरा उस बच्चे की शादी हो कैसे होगी, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। मैंने कहा "ये बिना दवाई के मर गए आप तो क्या होगा? जी आपके बिना बेटे की शादी नहीं होगी या जी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। मैंने कहा दुनिया चलती है, आप यदि आप नहीं करें बाईपास तो हो सकता है 4 दिन जो आपको मिलने वाले हैं शायद वो भी ना मिले। जी खैर मैंने बड़ा जो पता नहीं कैसे कहा होगा, क्यों कहा होगा, आई डू नॉट नो। तीसरे दिन व्हील चेयर में मुझे वो गैलरी में मिले हॉस्पिटल के। तो उनकी बीवी बुला के मुझे कहती भाई साहब आपने कुछ कहा था क्या इनसे? मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे कहा था। चलिए तैयार हो गए, बाईपास हो गई इनकी और स्वस्थ है अभी। तो एक कारण, आपके सर मन सब की जो बात है कभी कभी सही है ना, कहने ऐसा भी है से और कारण कम्युनिकेट बन जाता करते है। हैं। तो ये सर मोटिवेशन ये है। सर हमारे कुछ गेस्ट हैं, शायद कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं। जी जी तो इनको एक धन्यवाद कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। भारती, अजय प्रकाश श्रीवास्तव, पूनम चौहान, सुमन चटर्जी पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 डॉक्टर बेंद्रे। इट्स एन एक्सेलेंट वन। पहली बात तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सेलेंट कि एक छोटा सा आपके दिमाग में ऐसा आता है, देखिए मैंने 9th पास करा, मैंने 10th पास करा, मैंने 11th पास करा और मैं कहीं नहीं हूँ। जी तो उसका जो एक बहुत बढ़िया एस्पेक्ट मुझे ये लगा कि अभी रिसेंटली मैंने एक दुखद घटना देखी कि मैं पास नहीं हुआ, ही कमिटेड सुसाइड। तो यदि ये 12th के बाद यदि फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कहीं डिप्लोमा दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, तो एक एहसास जो ये खराब हो रहा है बच्चों को कि मैं फेल हो गया, इस एक एहसास माइलस्टोन मिल जाता है। जी जी हाँ, एक उससे माइलस्टोन मिल बचेंगे, जाता वो डिप्रेशन से बचेंगे। और दूसरी बात भी ये है कि बोझ तो बहुत बढ़ गया है पढ़ाई का, बहुत कम कर रहा है आपके सिलेबस में जैसे बात हो रही है। और जो एसेंशियल्स है वो 10th तक 12th तक एसेंशियल्स पढ़ाए, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन तो आपकी मर्जी है, आप जितना चाहे। स्पेशलाइजेशन तो इतना बड़ा गड्ढा है कि खोदते खोदते भी आप थक जाएंगे, वो और बाद में हो। एक और जो अच्छी चीज मुझे लगी वो ये था कि अर्ली स्टेज से वोकेशनल ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है। जी हाँ जी हाँ, तो मतलब जब आप एक 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो एटलीस्ट आपको कुछ तो हुनर आएगा, आप सोच सकते हैं कि आप क्या काम करेंगे। तो जी हाँ बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से मिस्टर चटर्जी आपको अपने सवाल का कुछ जवाब मिला होगा। बाकी डिटेल में आप नेट पर भी देख सकते हैं। रोहिणी चितले, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डूइंग द हार्ड एफर्ट्स इनकंसिस्टेंटली अप्रिशिएट, ये आपको सर अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो नाइस व्हाट ऑफ आर द यू। एडवांटेज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग ऑनलाइन। एडवांटेजेस एडवांटेजेस तो ये है कि बच्चे जब कहीं आ जा नहीं सक रहे तो कनेक्टिविटी तो रहती है ऑनलाइन टीचिंग से। पर आई फील कि जो प्रैक्टिकली हम लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह बहुत जरूरी है, दिखाना, इंटरेक्शन बच्चों के साथ जरूरी है, वो ऑनलाइन इतना नहीं हो पाता। फिर भी कि बढ़े हैं बच्चे घर पे, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग में कुछ तो कनेक्टिविटी, कुछ तो जा रहा है उनके पास। बिल्कुल ये तो नहीं कि ब्लैंक है कर, तो थोड़ा सा फायदा है। आई थिंक दिस इज एन अल्टरनेटिव बस बट देयर इज नॉट नो, द सॉल्यूशन। नॉट द सोल्यूशन। सर ऐसा है कि मेरा इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूँगा कि ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, सॉरी, ये ऑल्टरनेटिव अभी शुरू हुआ है एकदम से, क्योंकि एक झटके में शुरू हो गया। कल तक नॉर्मल टीचिंग थी, आज ऑनलाइन हो गई। समय के साथ इसमें इवोल्यूशन हो रहा है। तो जो चीज़ें आज हमको लगता है मिसिंग है, उनको भी डालने का कुछ ना कुछ प्रबंध धीरे धीरे आएगा। कैसे, अब प्रैक्टिकल कैसे होगा, आई रियली डोंट नॉट नो एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैं आजकल, मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो मेरे ख्याल से होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे वर्क फ्रॉम होम में लोगों को शुरू में था, अरे कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये मेरा तो काम ऑडिटिंग का है, मैं कैसे कर सकता हूँ। अब आज मेरे कुछ दोस्त हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करते हैं,
वो कहते हैं यार हम तो वैसे ही घबरा रहे थे, अब तो बड़ा अच्छा है, मैं तो ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली आई डोंट नीड एन ऑफिस, आई कैन रन फ्रॉम माई हाउस। तो मतलब इवोल्यूशन है सर, वो तो होगा। बट यस, आपके सब्जेक्ट्स जो प्रैक्टिकल वाले हैं वहाँ तो दिक्कत है। अब जैसे इंजीनियरिंग में भी अगर वर्कशॉप करनी है तो करनी है, तो उसका तो सोल्यूशन कोई नहीं है, लेकिन उनके लिए वो डेडिकेटेड टाइप का, उस टाइप के काम के लिए विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल, वन कैन एक्चुअली प्रॉब्ली टेक आउट मेथड्स। तो ये था। मंजरी शुक्ला नमस्कार करती हैं। और सुमन चटर्जी का एक और सवाल है, डू यू थिंक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज डिस्ट्रैक्शन टू एग्जामिनेशन बेस्ड एजुकेशन? बताइए मैम। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो आपस में उनका आपस में इंटरेक्शन जो होता है, तो उनको एक वो एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जो हम सिर्फ ऑनलाइन दे रहे हैं तो वो उनको दे आर नॉट सेटिस्फाइड। जी उन्हें तो स्कूल में ग्रुप में बच्चों के साथ बैठ के जो एक मतलब वो भी दैट पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो हम ऑनलाइन में नहीं प्रोवाइड कर सकते। वो ऑनलाइन का बात होगी सर। ये तो मैम ये हाँ। पूछ रहे हैं डिस्ट्रैक्शन टू एग्जामिनेशन बेस्ड एजुकेशन। वो क्या है कि एग्जामिनेशन रट्टा, जिसे एक बड़ी क्रूड लैंग्वेज में कहते हैं, इफ यू नो समथिंग यू कैन रिप्रोड्यूस, बट आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया अगेन। यू कैन इंक्लूड, आई थिंक, एक ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चे की, जो जैसे पब्लिक स्कूल्स में होती है कि राइडिंग भी आता है उसका, स्विमिंग भी आता है उसको, भी है। हाँ, उसको ग्रुप्स में उसको क्रिएटिविटी भी सिखाते हैं, उसको डिसिप्लिन भी सिखाते, कल्चर भी सिखाते। मैंने देखा है कि मैं पब्लिक स्कूल में गया तो आपके IIT रुड़की में गया था मैं, आई हैड टू गो इन अ प्रॉपर ड्रेस टू द मेस। सो आई मीन इट्स नॉट बैड। या इस तरह के यदि आप शुरू से कर दे, क्योंकि बच्चा यदि रेसिडेंशियल स्कूल्स में थ्रू आउट द डे रहता है, तो ये इस तरह की डेवलपमेंट ज्यादा बेहतर है, बजाय कि मैंने 3 घंटे में साल भर का पढ़ा हुआ लिखा, और जो मुझे लिखना आता है तो ठीक है, आई एम फाइन। मेरा अपनी जगह कुछ मानना ये है कि आजकल के बच्चों का एक्सपोजर हमसे, हमारे टाइम के मुकाबले पता नहीं कितने गुना ज्यादा है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक। एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊंगा। मेरी ग्रैंड डॉटर सेकेंड क्लास में थी, और तब तक उसको लिखना लिखना शायद बहुत अच्छे से नहीं आता रहा होगा, लेकिन तो मैं उसको सुबह सुबह कभी कभी स्कूल छोड़ देता था। तो मैं उसको स्कूल छोड़, मेरे घर से स्कूल का ड्राइव मुश्किल से 7-8 मिनट का है, 10 मिनट का समझिए। तो वो अपना कुछ उसका शायद टेस्ट था, क्या था वो, कुछ पूछ रही थी। उससे अचानक से मेरे को पूछा, नाना जैसे काउज का हर्ड होता है, ऐसे फिश का क्या होता है? अब मैं इंग्लिश स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं हूँ तो मुझे एकदम से दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया। तो मैंने उसको बोला, बेटा तुम्हारे एग्जाम में आएगा क्या, मुझे तो पता नहीं है। तो शी सेड, अच्छा अपना मोबाइल दीजिए। उसने मेरा मोबाइल दी, एंड यू नो शी वाज, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है वो उसके मुंह से क्या निकल रहा है। काउज हर्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो उसने गूगल खोला, ग्रुप ऑफ एनिमल्स टाइप किया, इतने में उसका स्कूल आ गया। तो उसने मोबाइल मेरे हाथ में दिया, नाना इसमें से देख के समझ लेना, और उधर के अपना आप बात कर रहे हैं ना, तो बच्चा आर सो स्मार्ट, माय ग्रैंडसन, मैं उसे कुछ कहता हूँ तो कहता कोई पता नहीं है क्या, मैंने कहा नहीं पता, तो मैंने कहा गूगल पे देख ले, अदरवाइज मैंने कहा गूगल पे देख ले, तो देखता नहीं, वो तो स्पीकर लगा हुआ है, फटाक से करा और सवाल पूछ लिया उससे, मतलब ही डजंट वांट टू टाइप आल्सो क्वेश्चन नीड्स टू बी टाइप, ही डजंट टाइप इट। तो ये बात तो ठीक है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन that it cannot teach you culture, it cannot teach you the behavior. The process could be different, but evaluation process has to be there. जब आप मेरे कंधे पे हाथ रखेंगे, कहे बेंदे साहब कैसे हो, that cannot be done on online. And holistic development is like something like this, कि मैं, आपने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो जो अपनापन मैं फील करूंगा, और जो मेरा आपसे that also needs to be there. वही बात, that also बच्चों को इसी स्कूल। रोहिणी चितले कहती हैं, humble polite attitude is really appreciated, again compliment to you. विनीता चोपड़ा कहती हैं, very beautiful session,
great teachers. I appreciate as I am a teacher also. जिनकी कहानी मैं आपको बता रहा था वो डॉग वाली, जी, so nice of her. रोहिणी चितले बोल रही, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस हैज एब्सोल्युटली नो लिमिटेशंस एक्चुअली. Yes. मैं कहीं पढ़ रहा था, we learn something from everyone who passes through our lives. Some lessons are painful, some are painless, but all are priceless. Yeah. All are priceless. अजय प्रकाश श्रीवास्तव बोलते हैं, वेरी नाइस सेशन, थैंक्स अनिल जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच सेशंस एवरी वीक. ये मेरे लिए है. My regards to you all as teachers. ये आपके लिए है. Oh, so nice of you. Prakash Srivastava, it's really great to join such talks which inspire everyone to do his bit for betterment of society. So beautiful. मैं जैसा आप बात कर रहे थे कि आपका तो सारा समय टीचिंग स्टूडेंट्स और आप अपने फ्यूचर के लिए जो लेगेसी बना रहे हैं उसमें बीता, तो मैंने एक सोचा कि मैं लोगों से शेयर करूं गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, पुराने जमाने में क्या होती थी और आज भी वो है या नहीं. तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा. परम ब्रह्मा परम विष्णु गुरुर ब्रह्मा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय. जी, तो ये मैं छोटा सा दिखाना चाहूंगा. Since ancient times, knowledge has been valued in India. Long before the first Vedas were written down and stored for study by posterity, this knowledge has existed in the minds of sages. The gurus passed on this knowledge to their disciples by reciting it to them. The disciples memorized what they heard, and when it was their turn, they too passed it on to those who became their disciples. It is a common prescription in several Indian traditions that students must spend early years of their lives in a Gurukul to learn from a teacher. Shruti, the tradition of listening and memorizing, is only one among many teacher-student paths. Other such paths may be Bhakti and Advaita. The minds of wise teachers and devoted students are the vessels which have carried knowledge from distant history into present times. This is the essence of the Guru Shishya Parampara. तो सर ये गुरु शिष्य परंपरा थी और आज भी यही है, चाहे मेथड ऑनलाइन हो गया हो, चाहे मेथड कुछ भी हो. अब आप भी जैसे वो बता रहे हैं कि किताबें लिख रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, छोड़कर वो चाहते हैं आगे लोगों के काम आए. तो ये है गुरु शिष्य परंपरा. जाते जाते हमेशा की तरह एक कविता मेरी तरफ से नहीं सुनाऊंगा तो मेरे कुछ श्रोता नाराज हो जाते हैं. मेरी पूंजी है मेरी सीख. हमने ये बात डिस्कस भी की, आपने बताया भी. मेरी पूंजी है मेरी सीख, सीख जो मिली माता पिता से, बंधु बांधवों से, शिक्षकों से, सहकर्मियों से, अपने बच्चों से, अनेक अनजानी मुलाकातों से और आप सभी मित्रों से. आप सभी मेरे गुरु हैं, मेरे जीवन को आयाम देने वाले. और आज इस दिन जब हम शिक्षकों के साथ हैं, सभी का सादर अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो सर आपने अपना कीमती समय दिया, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे यकीन है कि श्रोताओं को कुछ लाभान्वित हुए होंगे और आपको फिर भविष्य में भी आप ऐसे ही लोगों की सहायता करते रहें. और मेरा तो आपसे अब इंटरेक्शन होता ही रहेगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखना है. और अभी तो मैं आपसे 10 साल पीछे हूँ. So nice of you. बहुत अच्छा लगा. We enjoyed talking to you. We enjoyed. Thank you very much. नमस्कार. जय हिंद.